As we stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another, I, Madhura Chattopadhyay, your host for today, welcome you all to this webinar on Automation and Industry 4.0. The world of manufacturing is changing rapidly. To survive and thrive now, we have to be willing to invest in Industry 4.0, and we ensure that you all are in the perfect place to have all your queries answered. On behalf of TechBurn, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Mr. Siddharth Bhatta, for joining us to shed light upon today's topic. We are also honored to have with us Professor Arindam Basak, Dean of Training and Placement Cell, School of Electronics Engineering, under whose guidance we will be moving forward today. We are also pleased to have with us such an enthusiastic group of people as our audience. This webinar is a part of series TechBurn Talks, which is an initiative by TechBurn to help students get knowledge and facts shared by experienced personality in the domain itself. Through this webinar, we hope to guide our audience in the most convenient manner to help them achieve their goal. Our co-organizer, School of Electronics, KIIT, aims to produce electronics engineering professionals to lead a successful career in industry, pursue higher studies, or entrepreneurial endeavors. Talking about us, TechBurn, a pioneer in the edtech industry, is one of the fastest growing professional training platform in the country and is backed up by companies like Amazon, Microsoft, Startup India, and the Ministry of Corporate Affairs. It has been awarded as the best startup of the country for the year 2021 by Indian Achievers Award and the most promising startup in Bhubaneswar by Startup Buddy. It is dedicated towards providing participants with a state-of-art training in technology. Its goal is to involve more and more students into projects and research topics, which will help them understand industry requirements and deliver their work according to industry demands. As mentioned earlier today is all about looking into the future and knowing more about automation and Industry 4.0. So without any further delay, I would like to introduce you all to our speaker, Mr. Siddharth Bhatta. He is a versatile personality who is skilled in various domains, being the founder of Karkhana Marketspace and the co-founder and CTO of PCare. He will be sharing with us his valuable insights from his experience and knowledge from the industry. He has also been a speaker at TEDx, not once, but twice. And he completed his master's from the prestigious BITS Pilani. His passion is to find innovative solutions to the problems around us and spread his knowledge and learnings among students across the globe. Sir, we are so glad that you could be here with us to share your insights on automation and Industry 4.0. Thank you, Madhura. I'm audible to everyone, I think, right? Yes, sir. You're completely Okay, audible. perfect. Clearly. So, thank you, Madhura, for the kind introduction. And once again, thank you, KIT University and TechBurn for inviting me for this wonderful session on IoT. So, first of all, Sir, I'm sorry to interrupt you. yes. We just have to make a small announcement before we Please, start. please. Thank you, sir. To make this meeting more productive, we have enabled our open chats feature where one can source any of their queries or questions. Also, this is a reminder that there will be a giveaway filled with exciting TechBurn goodies for the most interactive and enthusiastic members of the audience. Also, at the end of the webinar, there will be an attendance conducted via a form on the basis of which every attendee will be awarded with a certificate of participation. Without further ado, so let's welcome Mr. Siddharth Bhatta to enlighten us with his words, knowledge, and most importantly, experience, which plays a great role in any individual's career. Thank you, sir. All right. So, first of all, happy Eid to everyone and a happy Akshay Tritiya. And I hope you all are good and fine. So, as we are talking about industrial automation and IoT, so today I would like to present this webinar or seminar in a very different way. So I hope Arindam is also here, and many times I have given many presentations in terms of
what is the actual IoT, how you can use IoT, how you can start working on IoT, right? So many of you are freshers over here, but today I will keep my focus in something different aspect. Okay, obviously I'm gonna share the PPT. So let me just first of all share my screen. I hope everyone is comfortable in Hindi and English. Yes. Yes, Madhura, yes, Bhaiya. everyone is comfortable in Hindi and English, right? Yes, Yes, Bhaiya. Yes, Bhaiya. Okay, great, great. Okay, so yeah, I was talking about one big term, जो कि everyone is listening this term from last 5-6 years कि IoT ये है क्या, ठीक है? तो अभी मैं एक बहुत छोटा सा स्टोरी पोर्ट्रे करता हूँ सबके सामने. I hope you will like this story. So the story is the starting of the story is from internet age, when internet came over the world. Okay, so the first time when everyone started using internet, maybe you all have started using internet around 2013 or 14, near about, right? But I started using internet in 2004 or 5. So if I say कि जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर परचेज किया एंड व्हेनेवर वी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, so we have fed it some data, right? Data means to say you have entered your first name, last name, date of birth, and all those datas which are required by those companies, right? The next age came is abhi, right now you all are using Fitbands, okay? So with the help of Fitbands, companies are basically gathering your information like how much you walk, run, or exercise, calories burn, and all. Before that, few products are there like Alexa and all. They start capturing your voice. Okay, so collectively, if you see, so companies started gathering all the information that human have. Okay, so you have to understand कि अभी IoT का aim क्या है. So IoT का majorly aim आपके लिए तो मुझे नहीं पता कैसे यूजफुल है या नहीं है. ऑब्वियसली आपकी लाइफ को ईज करेगा IoT, लाइक होम ऑटोमेशन और सेंसर नेटवर्किंग एंड ऑल. बट फॉर द इंडस्ट्रीज, इफ आई से एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, ये आपका डेटा कलेक्शन करता है. डेटा कलेक्शन इन द सेंस कि अभी आपकी आवाज कैसी है, ठीक है? तो आपको कौन सा म्यूजिक पसंद होगा, या फिर अगर आपका मोबाइल फोन या आपका गूगल असिस्टेंट इज वर्किंग विद यू, तो किस आवाज में आपसे बात करी जाए, ठीक है? आप जो भी अपने आसपास बोलते हैं, तो आई जस्ट वांट अ क्विक रिस्पांस इन अ चैट बॉक्स. हैव यू एवर फील कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपका मोबाइल सुन पा रहा है और वही वो रिस्पॉन्ड करता है? ग्रेट. सो अभी ये कैसा हो रहा है? आपने तो कोई परमिशन नहीं दी है, बट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू इनिशियलाइज योर फोन, ओके, चाहे आप एंड्रॉइड यूज करें चाहे आप iOS यूज करें, you accept many terms and conditions, and उसके अंदर आप अलाउ करते हैं कि अगर आपका फोन ओके गूगल पे नहीं वर्क कर रहा तब भी वो आपकी आवाज सुन रहा है और वो आपको रिकमेंडेशंस दिखाता रहता है, ठीक है? नाउ इफ somebody is saying I am secure with the data, so sorry to say you are not, ठीक है? और अगर आपको सारी फैसिलिटीज अचीव करनी है, गेन करनी है, तो आपको ओपन होना पड़ेगा, ठीक है? अभी सिंपल सा एग्जांपल, जोमेटो लॉन्च 10 मिनट delivery, right? Abhi, just think of a time when Zomato automatically know what you want to eat on Tuesday evening, okay? तो वो आपके रिकमेंडेशन से पूछेगा ही नहीं, वो अपने आप ही आपको शो करेगा और आप डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे. तो वो डेटा उसने कहाँ से कलेक्ट किया? या तो आपके प्रीवियस एनालिसिस से, जिसको आप बेसिकली आज की डेट में AI एंड ML बोलते हैं, ठीक है? तो AI एंड ML करने के लिए यू नीड अ डेटा, एंड नाउ whatever the data we can feed personally, we have already done that. But now what left left is, अभी हमारे घर के आसपास क्या है, हम लोग क्या चीजें यूज करते हैं, हम कब बैठे हैं, हमारी चेयर का यूटिलाइजेशन क्या है, हमारे माउस का यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है? हमारा गेट कितनी बार दिन में ओपन हो रहा है, हम लोग लाइट को कितनी बार दिन में ऑन ऑफ कर रहे हैं. ये डेटा आज भी मिसिंग है एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो अगर इन केस somehow I can capture all these data, so I can make your life easier, right? That's the whole perspective of making this ecosystem of IoT, AI, ML
and AR VR later on. ठीक है, अभी ये छोटा सा स्टोरी आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि IoT बेसिकली लाया क्यों जा रहा है. ओके, और I don't know after 10 years, but within 10 years everything will be automated properly. ठीक है, अभी हार्डली आप कभी टीवी का चैनल भी चेंज करोगे, वैसे तो टीवी नहीं होगा फ्यूचर में. I can bet on this कि after 5 years you will not find your monitors, TVs and all. You all gonna work on smart glasses. Okay, so this is the whole perspective of having a IoT in our ecosystem. So अभी मैं बात करता हूँ IoT के different angle से, that is IoT in businesses. So think of a IoT as a business. Okay, whether it is a manufacturing plant, automation, healthcare, education, your home, personal use and all. So yeah, so myself Siddharth, founder of Karkhana Makerspace and also CTO of PCare. It's a healthcare industry, healthcare startup. We are designing some healthcare products. Okay, obviously I bet on the businesses which basically grow in future. Okay, so that's why I'm saying a business. So I prefer to work on IoT embedded system, PCB designing, more into wireless sensor network and all. Okay, so if I talk about the McKinsey report, obviously this IoT industry has grown 30% in 2014 when that term was coined. ये पहला वर्ड जब 2014 में आया था, और आज की डेट तक ऑलरेडी 25 से 30% मार्केट कवर हो चुका है. And if I expected to say by 2030 it will be around 80 billion. Now 80 billion in terms of IoT devices I am saying. आज की डेट में if you are studying in a KIT university, being a technical students, you all have 3 to 4 devices which are connected to internet on an average. I am saying if you talk about a person like me, I am using around 7 to 8 devices. Okay, अभी Fitband तो आज की डेट में कॉमन है, earpods are very common, अभी आने वाले टाइम में स्मार्ट ग्लासेस विल बी वेरी कॉमन. ओके, और वन मोर प्रोडक्ट मे बी आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो, एप्पल एयर टैग्स. राइट, मे बी शायद आप लोगों ने सुना होगा एयर टैग्स के बारे में. इफ एनीबडी हैव प्लीज रिस्पॉन्ड अगर आप लोगों ने एप्पल एयर टैग्स के बारे में सुना हो. ओके, नो वरीज. सो बेसिकली अगर नहीं सुना है तो एप्पल एयर टैग्स बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके किसी भी नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप अटैच कर दो तो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं. लेट्स से जनरली हम लोग अपनी कीज, कार की कीज या वॉलेट रख के भूल जाते हैं. ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ रखी गई है. तो अगर वही टैग आप उस पर लगा दोगे तो यूजुअली वो आपको इजीली आपके मोबाइल में दिख जाएगा कि कहाँ रखा है. अब आप इमेजिन करो कि 1 साल तक आप वो टैग अपने पर्स पे रखते हो और आपका वॉलेट घर के एक जगह पे आप डेली रखते हो ऑफिस के आने के बाद या सुबह. तो अभी नेक्स्ट डे कभी अगर आप अपना वॉलेट पिक करना भूल गए तो आपका मोबाइल आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन बता देगा कि बॉस यू हैव फॉरगेट टू पिक अप योर वॉलेट, काइंडली कैरी इट. ठीक है, तो ये काम कैसे हुआ? ये काम आपके टैग ने किया. टैग क्या है? एक IoT डिवाइस है. ओके, ब्लूटूथ इनेबल्ड IoT डिवाइस. बाय डिसंबर दिस ईयर Jio is also launching their Jio tags. All right, now why Jio is entering into this domain? Because it's a very big sector. ठीक है, अभी Jio डिजिटलाइजेशन पे आ गया है, तो Jio is not only restricted to cellular communication, वो अपने प्रोडक्ट्स भी निकाल रहा है. Okay, Jio phones are already there, Jio tags are coming, Jio glasses are also coming, Jio home automation are also coming. Okay, so they are playing a very big game now. तो अभी आपको समझना होगा कि इसकी मेजरली रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, तो if I say yes, we need more computing power, more reliable mobile connectivity and more sensors so that they all can mix up and make a good and better life for us. Okay, abhi let's take a very simple example. Most of you belongs to West Bengal, Calcutta and all those areas. Okay, and me also belongs to Delhi, but my native is Calcutta and Rajasthan only. So I went to those places several times in a year. So what I have seen is कि क्या होता है दिल्ली जैसी जगह पर जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं वो हमारे स्ट्रीट्स में आते हैं. ठीक है, वी हार्डली गो टू रिलायंस फ्रेश और एनी काइंड ऑफ शॉपिंग एरिया. ठीक है, माय लाइक मदर एंड ऑल दे यूज्ड टू बाय फ्रॉम ऑल दोस स्ट्रीट वेंडर्स. तो अभी आप इमेजिन करो कि समडे कोई केला बेचने वाला या कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचने वाला हमारे स्ट्रीट पे एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रीट को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि somebody entering with all these stuffs. So you will
immediately get an alert कि अच्छा मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है. Okay, so understand the future. See, everyone is not going to Reliance Fresh and all, right? So this is one of the aspect. Second aspect is अभी हम सबके सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, Amazon, Nykaa, Myntra, Meesho and all those apps. So once we start scrolling on those apps, तो अभी हम लोग कुछ चीजें बहुत देर रुक के देखते हैं. तो whenever we are seeing something on a screen for some time, they analyze our data and check, okay, this person is liking this product, तो अभी इसको ऑफर देते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्या अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज देख रहे हो और 1 घंटे बाद आपको उसका मेल आता है डिस्काउंट के साथ, या कभी आपको नोटिफिकेशन आता है कि यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट? एनीबॉडी हैव एवर सीन दिस, राइट? सो नाउ many times, right? Now the reason is we all are in an ecosystem where you cannot say कि सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. 99% लोगों के साथ ऐसा होता है. एक और सबसे बड़ा आपको फैक्ट बताता हूँ. अभी जब आप गूगल मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर एंड्रॉइड, आईओएस का मुझे आइडिया नहीं है, एंड्रॉइड में क्या होता है, सपोज यू विजिटेड सम रेस्टोरेंट, ओके, और सम अम्यूजमेंट पार्क और सम प्लेस, अगर आपका जीपीएस ऑन नहीं है तब भी आपका फोन डिटेक्ट कर लेगा कि आप उस प्लेस पे गए थे, और वो आपको कुछ देर बाद एक रिव्यू फॉर्म भेजेगा कि हाउ यू लाइक दिस प्लेस. एनीबॉडी कभी ऐसा फेस किया आप लोगों ने, या ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो अभी आप देखो कि जीपीएस ऑन नहीं है तब भी आपका डेटा उसको पता है. कैसे पता है? क्योंकि आपका फोन सिर्फ आपसे नहीं बात कर रहा, वो आगे जितने भी डिवाइसेस वहां पर हैं लोकल एरिया में, वो सबसे कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा है. इसके लिए ऑलरेडी सुंदर पिचाई हैज ऑलरेडी फेस अ लॉसूट इन यूएस कोर्ट कि आप बिना परमिशन के डेटा कैसे कम्युनिकेट करवा रहे हो. ठीक है, बट इट्स अगेन यूजर हैज एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, एंड गूगल हैज डिजाइन्ड दैट इन अ सच अ वे. सो फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग ऐसा होने वाला है. अभी आप समझिए कि अगर कल को आपका गाड़ी चोरी हो गया है तो आपके मोबाइल पे आपकी कार का लोकेशन आपको दिख जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कार कहीं ना कहीं किसी मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है, उसका डेटा आपके पास आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा शायद, मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूजिंग मोर ऑफ सीसीटीवी कैमरास. इफ यू ऑल आर स्टडीइंग इन भुवनेश्वर, मे बी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जयदेव विहार टू किट साइड, आप लोगों ने हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास देखे हैं. ओके, नॉट इवन अ वन, मल्टीपल सीसीटीवी कैमरास एट डिफरेंट एंगल्स. तो सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए गए? उसका रीजन है सीसीटीवी कैमरा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आईओटी इकोसिस्टम. ठीक है, दैट कैप्चर्स द डेटा एंड एनालाइज दोस इमेजेस. ठीक है, अभी वो एनालाइज करके इमेज से क्या बताते हैं कि ये पर्सन कहां पर था और अभी ये पर्सन कहां पर है. ठीक है, या फिर आप अपनी गाड़ी कितनी स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन. या फिर आपने कितनी बार रेड लाइट जंप किया, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन. या फिर आपने चलते वक्त किसको ठोक दिया या फिर किसी से क्रैश कर दी गाड़ी. तो जनरली इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी को नहीं पता होता कि गाड़ी किसने, एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ. ठीक है, एंड वी यूज्ड टू स्टार्ट बीटिंग समवन एल्स. ओके, तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, एनालाइज करती है विद द हेल्प ऑफ कैमरा ओनली. ओके, इवन अभी आपके सोसाइटी में या कॉलोनी में भी कैमरास लग चुके हैं. ओके, सो this is one of the major you can say thing which happens in last 4-5 years in India. हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं. तो जो रियल टाइम एनालिटिक्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, वो करना बहुत जरूरी है. और आईओटी का एक डिफरेंट एंगल है एज कंप्यूटिंग. तो एज कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है? अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया 60 बिलियन डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, तो आपको भी समझना होगा कि 5G आने वाला है. और 5G क्यों आ रहा है, उसका रीजन है क्योंकि कनेक्टिविटी और नंबर ऑफ डिवाइसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली. ठीक है, वो 5G आपके लिए नहीं आ रहा. 5G आ रहा है कि आपका डेटा हम जल्दी कैसे कैप्चर करें. आपको दूसरे एंगल सोचना होगा. आप तो पर डे 1 या 2 GB ही यूज करोगे. ठीक है, बट अभी 5G आने से जो मल्टीपल डिवाइसेस आपके घर में लगे होंगे या बाहर लगे होंगे, उनको कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलेगी और हाई स्पीड डेटा मिलेगा. ओके, तो हर एक डेटा को क्लाउड पे ले जाके एनालाइज करना इज नॉट अ फिजिबल मेथड. सो व्हाट कंपनीज हैव स्टार्टेड, अभी हम लोगों ने एज डिवाइसेस, एज डिवाइस मतलब आपका जो सेंसर होता है, आईओटी का डिवाइस होता है, उसी पे हम लोगों ने एमएल और एआई को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है. एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. आज की डेट में डोर अनलॉकिंग सिस्टम आता है फेस रिकॉग्निशन वाला. ओके, तो जो फेस रिकॉग्निशन वाला डोर अनलॉकिंग सिस्टम है, उसमें आपका फेस रिकॉग्नाइज करा है, मतलब कहीं पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चली है.
अब वो डेटा आपका क्लाउड पे नहीं भेजता, वो लोकल लेवल पे ही उसको प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। ऐसे इमेजिन अ कार, अगर आपके पास एक कार है, अभी आपकी कार का टायर पंचर होने वाला है, या फिर उसमें कोई नेल आ गई है और धीरे धीरे एयर प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो आपका कार आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देगा विदाउट सेंडिंग योर डेटा टू द क्लाउड। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड का मतलब क्या है, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग का मतलब क्या है। आई होप क्लाउड सबको क्लियर होगा। क्लाउड बेसिकली समवन एल्स सर्वर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो if I talk about the complete chart, so you can see on my screen if it is clearly visible. So market growth in terms of business application is increasing rapidly, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो मेजरली आप लोग करते हैं, बीइंग अगर आप कभी फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब करेंगे, इवन इन रोबोट बॉस और कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी, सो ये लोग हार्डवेयर नहीं बना रहे, ये लोग बेसिकली पूरा क्लाउड सेटअप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, ठीक है। सो आई रिसेंटली डूइंग वन ट्रेनिंग विद रोबोट बॉस ओनली, ओके। तो मैं बताया तो बेसिकली क्या काम होता है। जैसे आप लोग अभी रोबोट बॉस में जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा, तो हु विल गिव द ट्रेनिंग? पीपल लाइक अस, ठीक है। तो आई एम आल्सो करेंटली एंगेजिंग विद रोबोट बॉस, IBM एंड कैपजेमिनी, ओके। एंड वहां पर जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है आपको कि कैसे इकोसिस्टम डेवलप करना है, सो आई एम डूइंग दैट पार्ट एज वेल, एज अ यू कैन से एज अ पार्ट ऑफ अ हॉबी, ओके। सो अभी यहाँ पर हमें 4 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपका डिवाइस, ठीक है। डिवाइस सेंस आपका सेंसर। सेकंड, आपके डिवाइस की कनेक्टिविटी कैसी है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, या कोई LoRa मॉड्यूल है, या कोई लैन केबल लगाया है आपने, राइट। थर्ड, आपको बात करनी है आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, ओके। AWS है, Azure है, IBM है, और क्या आपका खुद का बनाया हुआ है। चौथा, आपको ध्यान रखना है बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा कहीं से लेके आ रहे हो तो कुछ तो यूज करोगे उसका, ओके। ऐसा तो नहीं कि घर पे आके डेटा रखोगे। सो दैट इज द 4 IoT technology stack that you have to keep in mind, all right. So first comes in the foundation layer where we talk about IoT stack, and most category of products comes into this market, okay. Second is connectivity layer. Connectivity layer again a very major change in the industry. अभी तक आप लोगों ने जो भी सर्विसेज के बारे में सुना होगा, अभी एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस हो रहा है, कनेक्टिविटी एज अ सर्विस, CaaS, ओके। अभी जितने लोग कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अभी उसमें एक सर्विस और ऐड होने वाली है, कनेक्टिविटी एज अ सर्विस। मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास एक पर्सन आया कि सर मेरे पास IoT डिवाइस है, क्या आप मेरे लिए कनेक्टिविटी सेटअप कर दोगे, ओके। तो डिवाइस बनाना एक अलग टास्क है, कनेक्टिविटी सेटअप करना एक अलग टास्क है, और डेटा क्लाउड पे लाना एक अलग टास्क है, ठीक है। अभी कल को आपको इंश्योर करना है कि आपका डेटा 24/7 क्लाउड पे आता रहे, तो उसके लिए आपके पास कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। सो वो कौन सेटअप करेगा? वो बार बार तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो तो नहीं आएंगे आपके पास। सो अगेन लाइक अ लोकल वेंडर ऑफ टीवी, जैसे आपके एरिया में टीवी चैनल वाले होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं लोकल एरिया में, तो वो लोग कौन है? वो लोग खुद तो आपको चैनल नहीं दे रहे, वो भी किसी से सर्विस ले रहे हैं, राइट। ऐसे ही आपको चाहिए होगा एक पर्सन जो आपके डिवाइसेस को कनेक्टिविटी दे पाए, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर एंटरिंग इनटू दिस कैटेगरी ऑफ बिजनेस, तो I can 100% bet you will be profitable from the very first day, ठीक है। So third layer is the cloud computing layer where you guys majorly work. मुझे नहीं पता फ्यूचर में कौन हार्डवेयर पे जाएगा या नहीं जाएगा, बट IT में तो सब जाएंगे, ओके। सो इफ यू आर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ IT डोमेन, तो वहां पर आप मेजरली एक डैशबोर्ड डिजाइन करोगे, ठीक है। वहां पर बहुत सारे टूल्स रन होंगे जहां पे आपका डेटा विजुलाइज होगा, ओके। और आपको वो पिछले 5 साल से लेकर अगले 5 साल तक का प्रेडिक्शन लेके सब कुछ दिखाएगा। अगर कभी किसी ने जीरोधा ऐप या ग्रो ऐप यूज करी है, तो जो शेयर मार्केट के रेट्स होते हैं किसी भी शेयर के, वो आपको एक ग्राफ पे दिखते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो विजुअलाइजेशन कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने डेटा रिकॉर्ड किया। ऐसे ही IoT में क्या होगा, हम लोग डेटा रिकॉर्ड करेंगे और आपको ग्राफ दिखाएंगे। ग्राफ के साथ साथ हम आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन भी दिखाएंगे बाय रनिंग AI मॉडल ऑन दैट डेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है थर्ड लेयर पे। देयर कम्स अ टॉप लेयर, जहां पर हम उस डेटा को फ्रेगमेंट करके बिजनेस एप्लीकेशंस की तरफ
डाइवर्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने एनालिसिस कर लिया, अब एनालिसिस करने के बाद आप एक रिपोर्ट रेडी करेंगे और अपने बिजनेस को बताएंगे। तो आपको शायद कभी कभी लगता होगा कि कंपनी को कैसे पता कि हमें मोबाइल फोन में टच स्क्रीन चाहिए था, ठीक है, या फिर कंपनी को कैसे पता कि हमें लैपटॉप ऐसा चाहिए। तो वो ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करते हैं बैठ के, उनके पास पुराना डेटा है, ओके, प्रीवियस डेटा उन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि अगर हम ऐसा प्रोडक्ट निकालें तो यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा। ये डिमांड यूजर की नहीं थी, ठीक है, ये डिमांड कंपनी ने खुद बनाई और आपको बताया कि ओके ये फोन है, इसमें टच स्क्रीन होता है, ठीक है। फोन तो हमारा नॉर्मल डायल पैड वाला भी था, कॉलिंग तो उससे भी हो रही थी, फिर टच लेके आए, राइट, फिर सेंसर्स लेके आए। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, आई डोंट नो कितने लोगों ने यूज करा है, ब्लूटूथ हेडसेट पहले भी था सिंगल साइड वाला, राइट और रॉन्ग? सिंगल साइड का ब्लूटूथ हेडसेट पहले भी था, कंपनीज ने उनको पहले वायर से कनेक्ट करके दो कर दिए, अभी लाके उसको वायर काट दिया और दो बना दिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग चीजें वही कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के टेक्नोलॉजी को एनहांस करा है, ओके। तो आपको समझना होगा कि ये आपने नहीं डिसाइड करा, ये कंपनी डिसाइड करती है कि आपको क्या बेचना है, बट कैसे बेचना है वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, कितने लोगों ने चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक यूज करी है 2011 या 12 के आसपास? आई हैव यूज्ड दैट। उस टाइम पे इंडिया में अराउंड 11-12 के अराउंड जब चाइनीज फोन आए थे, उसी के साथ साथ यो बाइक आई थी, यो बाइक, ओके, दैट वाज द चाइनीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। एनीबॉडी, किसी ने देखा हो? ठीक है, तो अगर नहीं देखा सर्च करना, ओनली यो बाइक, फाइन। वो इंडिया में बहुत पहले आ चुका था, बट उस टाइम पे वी आर नॉट रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शंस। अभी ऐसा हो गया है कि अगर ओला कंपनी लॉन्च कर रही है, कोई और कंपनी लॉन्च कर रही है, तो वो एज ए स्टार्टअप माना जा रहा है, ठीक है, बट अल्टीमेटली उसमें कुछ है नहीं, जस्ट अ मोटर एंड अ बैटरी, ओके। तो ये चीजें कोई भी नई नहीं है, जो आज से 10 साल पहले इन्वेंट हुआ था उसी को रीफ्रेम करके आपके लिए लाया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अगेन अनदर मेजर सेक्टर, सो एज पर द CAGR रिपोर्ट, IoT का जो यूज केस है प्रैक्टिकली वो अराउंड 30.2 हो जाएगा बिलियन, आई एम सेइंग $30.2 बिलियन, सॉरी पाउंड्स, ओके। नाउ यू कैन इमेजिन कि आपके बकेट में कितना आने वाला है। ऑलराइट, just give me a second, sorry, just give me a second. Sure, sir, no problem. Yeah, so I was saying कि अभी जो मार्केट साइज है, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट होम इंडस्ट्री, तो होम एंड office industry grow by $2.7 billion. If we talk about MSME enterprises, it will grow by $9.6 billion. If we talk about large enterprises, it will grow by $17.8 billion. Okay, तो इस तरह से बड़ा मार्केट सेगमेंट है जो आप देख सकते हो। एंड एशिया पैसिफिक रीजन के इज वन, देन अमेरिका रीजन एंड ईस्टर्न मेरिडियन रीजन्स, ओके, यहाँ पर आपको मेजरली इफेक्ट दिखेगा। तो अभी दुबई रीजन में या अरेबिक कंट्रीज में इतना ज्यादा IoT का यूज हो रहा है कि एवरीवेयर वी आर लुकिंग फॉर ओनली IoT एंड IoT, ओके। सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ IoT, ठीक है। तो अभी 2018 तक का डेटा ऑलरेडी हम लोग जैसे कहते हैं कि सिलिकॉन वैली हम लोगों से आगे 5-6 साल आगे चल रहा है, ठीक है। तो इट्स ट्रू कि वो 5-6 साल आगे है, फाइन। एंड फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर डिजिटल फैक्ट्रीज, हमारी फैक्ट्री डिजिटलाइज हो जाएंगी, प्रिडिक्टिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस डिवाइसेस आएंगे, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स आ जाएंगे, डिलीवरी ट्रैकिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, फ्यूल एक्सपेंसेस कंट्रोल आ जाएगा। आपको पता है कि फ्यूल का कॉस्ट कितना बढ़ रहा है,
ठीक है, बट हमें नहीं पता कि हम दिन में कितना फ्यूल बर्न करते हैं। तो आपकी कार आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट करेगी कि बॉस आपने आज 100 किलोमीटर चला लिया, इतना फ्यूल आप उड़ा चुके हो या खत्म कर चुके हो, ठीक है, तो अभी आपको कार ड्राइव नहीं करनी है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, देन रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर सबको बहुत अच्छा लगता है, बट उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इंडिया में, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया। एंड इंडिया लाइक ह्यूमन इज अ क्रिएचर ऑफ एडॉप्शन एंड हेरिडिटी। तो अगर हम लोग बाहर जाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग बाहर के एनवायरमेंट को इजिली क्या बोलते हैं, बियर नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। तो उसके वजह से हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इंक्रीज होंगी। ठीक है, और जब वो इंक्रीज होंगी तो कंपनीज लाइक अस एज अ पी केयर विल एंटर इनटू द मार्केट फॉर अ रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग। तो आप सुबह शाम एक डिवाइस अपने हाथ पे लगा के रखोगे जो आपको अपने पैरामीटर्स दिखाता रहेगा। ठीक है, कि भाई अभी आपका हार्ट रेट इतना है, ऑक्सीजन लेवल इतना है, और जो भी अदर पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह से दीज आर द वेरी ग्रेट इंडस्ट्री जिसपे आप लोग फोकस कर सकते हो। इवन जो आपके कॉलेज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी आप इस पर फोकस कर सकते हो, नॉट ओनली ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड कि हम लोग सेमीकंडक्टर पे वर्क करेंगे। अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि बीइंग अ ईसी स्टूडेंट पर्टिकुलरली यू विल हैव अ मेजर कैरियर ग्रोथ। ठीक है, तो लोग अभी कंप्यूटर साइंस से उठ के ईसी में आ जाएंगे। ठीक है, और उसका रीजन यही है क्योंकि एडॉप्शन आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट IoT फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव अ क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चंस ड्रॉप करिए, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। Okay, so now the floor is open. As Sir said, the floor is open for all your queries. Chats are open, and you may also unmute yourself to ask your questions one by one. Just a reminder about our giveaway for the most interactive members of our audience. You can go ahead and ask any query that you may have. Good morning, sir. May I? Yes, Anshuman, you may continue. Please ask your question. So, a very good morning, sir. So, sir, I wanted to ask regarding IoT that where do you see IoT in next 10 or 15 years? Means from an electronics engineer's point of view. So if you talk about from electronics point of view, okay, so I'm not saying 10-15 years, I don't know what will happen after 10-15 years, but the point is कि अभी in next 5 years you will see the major change. Okay, major change in the sense कि being a electronics student आप तो जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोग्राम करोगे, वो तो आपके यूजफुल होगा, बट मेजरली जो रिक्वायरमेंट यूजर की तरफ से आने वाली है, लाइक अस, अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा हर चीज ऑटोमेटेड हो। ठीक है, जैसे मैं घर में एंटर करूं तो मेरी लाइट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, मैं घर से बाहर जाऊं मेरी लाइट्स ऑफ हो जाए, मैं क्लासरूम में एंटर करूं तो मेरा डेटा या मेरी क्लासरूम की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। ओके, तो इस तरह से आई नीड अ कंप्लीट इकोसिस्टम। तो बीइंग अ ईसी स्टूडेंट पर्टिकुलरली, वो सेंसर्स कौन डिजाइन करेगा या वो प्रोडक्ट कौन डिजाइन करेगा, वो तो आप लोग ही डिजाइन करोगे ना। ठीक है, तो ये मेजर चीज है। और अब आप इमेजिन करो, इंडिया की पॉपुलेशन स्टॉप तो नहीं हो रही है, ठीक है, और एवरी सेकंड पर्सन इज लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग एज देयर ग्रेजुएशन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा है, राइट? मैं एग्जैक्टली नंबर्स नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम नॉट इनटू द एनालिटिक्स पार्ट, बट हाँ, आई थिंक मेरा कैमरा शायद टर्न हो गया है। Yeah, it's fine. Okay, so I hope you got your answer. Yes, sir. Thanks a lot. Yeah, anybody?
Okay, prerequisite to enter into this industry. So ठीक है, as I said, IoT is divided into 4 domains. ठीक है, अभी 4 डोमेन में IoT है. तो पहला आपका है हार्डवेयर लेवल. If you are a really enthusiastic hardware person or hardware guy, you can start working on sensors, their interfacing, connectivity, wireless sensor network and all. ठीक है, पहला रास्ता वो है इस डोमेन में एंटर करने का. सेकंड है you can learn about the connectivity, networking. ओके, जैसे कि अभी मैं आपसे सिंपल सा ऑप्शन पूछता हूँ, कितने लोगों को पता है वाईफाई कैसे वर्क करता है, या हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ ब्लूटूथ एक्चुअली वर्क्स. सिर्फ कनेक्शन कराना इज नॉट अ ब्लूटूथ. ओके, उसके पीछे पूरी प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर हार्डवेयर है, सिक्योरिटी है. ओके, दैट ऑल कम्स अंडर योर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क कनेक्शंस. ठीक है, 4G क्या है, 5G क्या है, कनेक्शन डेटा बिल्ड कैसे होगा, पैकेट्स कैसे जाएंगे, इसके लिए लोग PhD करते हैं. Okay, so that is one another domain you can think of it and enter into this domain. Third is the cloud part, which is actually very easy for the many users. उसमें सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक टेबल चाहिए और AC के साथ. ठीक है, आपको बैठना है और कोडिंग करनी है या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है. बट अगेन, क्योंकि ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ओके, एक नॉर्मल IT पर्सन जो कंप्यूटर साइंस से पास आउट है या किसी भी और ब्रांच से पास आउट है, वो भी इसको इजीली बना सकता है. तो वहां पर मुझे लगता है शायद EC वालों का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए. पर्सनली आई एम सेइंग दिस बिकॉज अगर आप भी उसी डोमेन में जा रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज सेकंड. थर्ड पॉइंट. फोर्थ इज द बिजनेस एनालिटिक्स. तो बिजनेस एनालिटिक्स, लाइक मेनी पीपल विल डू MBA आफ्टर योर BTech. ओके, तो डेटा एनालिसिस का काम आपका होता है. MBA वालों का काम बिजनेस बनाने का नहीं होता. MBA वालों का काम बताना होता है कि बिजनेस में करना क्या है. ओके, तो वो लोग प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करते हैं एंड दे विल गाइड कि ओके, इस डेटा से हम लोग अपने बिजनेस में ये काम कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द फोर्थ लेयर. सो यू कैन थिंक ऑफ एनी 4 लेयर, बट प्राइमरीली जो स्कोप अच्छा है, जिसमें अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, वो है फर्स्ट और सेकंड लेयर में. बट मैं आप लोगों को एक बहुत ही रियल क्या बोलते हैं पॉइंट बता देता हूँ, जो फील्ड पे आप एक्सपीरियंस करोगे मे बी इन फ्यूचर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इज नॉट एट ऑल इजी to start with, क्योंकि if you want to design any kind of product in electronics, it's not at all an easy job because it required a lot of knowledge and lot of patience, because here the success rate is only 2%. okay, और यहाँ पर बैक स्पेस नहीं होता कि अगर आपने कोई कंपोनेंट गलत लगा दिया तो आप बैक स्पेस करके हटा दोगे, नहीं. okay, आपको दोबारा से वो सारा प्रोसेस रिपीट करना होगा. तो इट जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स. जब तक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जब तक इंटरेस्ट आता है, जहां क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाते हैं वहां पर इंटरेस्ट चला जाता है. ठीक है, तो हियर यू नीड अ मोर पेशेंस. तो अभी कितने लोग आर्डिनो पे काम कर रहे हैं या रास्पबेरी पाई पे वर्क कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आप अगर प्रॉपर्ली उसके डेप्थ में जाओगे तो इट विल टेक मोर टाइम. एक प्रॉपर एम्बेडेड C सीखने में यू विल टेक 6 months. ठीक है, प्रॉपर. तो फर्मवेयर लेवल की कोडिंग, लिनक्स की कोडिंग, ये तो अभी बहुत टाइम लगेगा आपको. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है. फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरे साथ स्टक रहे इस इंडस्ट्री में, आज वो लोग 50-50 लाख के पैकेज पे हैं इन इंडिया ओनली. और मैं अगर बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनीज में है, तो आज की डेट में जो दिल्ली मेट्रो या मेट्रो इंडिया में चल रही है, उसकी प्रोग्रामिंग वो लोग करते हैं. तो अब आप समझ लो कि मेट्रो चलाना इज नॉट अ इजी टास्क. ऐसा नहीं कि ड्राइवर आया, उसने थ्रॉटल ऊपर किया और मेट्रो चल गई. नो, उसके साथ साथ 50 लाख ऑपरेशंस और होते हैं. ओके, तो उसके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी है, कोडर्स बैठे हैं, डेवलपर्स बैठे हैं, जो उस हार्डवेयर को रियल टाइम पे इंगेज कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मेरा इनपुट रहेगा कि आप इस तरह से चीजों को आगे कर सकते हैं. स्टार्ट. यस, एनी अदर क्वेश्चंस? No, Yobike was not at all a failure, but it was a early launch for people like in India. Okay, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. We have Yulu cycles. ठीक है, जो हमारे भुवनेश्वर में आपको मिल जाएगी, ब्लू कलर की साइकिल्स हैं. अब कितने लोग यूज करते हैं Yulu cycles? Frankly, how many of you are using it? Hardly, I can say 1% of Indian people are using. Not even 1%, 0.1%. ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मेजरली टायर 1 सिटीज के अंदर ही अवेलेबल है, लाइक बैंगलोर,
भुवनेश्वर में अवेलेबल है, दिल्ली में है, कलकत्ता के न्यू टाउन एरिया में है, मैंने देखा था, ठीक है, पुणे में है, बॉम्बे में सम एरियाज में है। बट सबके सब साइकिल चलाना प्रेफर नहीं करते बिकॉज ये हमारे क्या बोलते हैं उसमें भी नहीं है, क्या बोलते हैं, फैशन में नहीं है, ठीक है। बट आज से 5 साल बाद जब पेट्रोल 200 रुपीज टच करेगा, उस टाइम पे आज सबके सब साइकिल ही चलाओगे, ओके। तो फॉरेन में आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, या चाइना की बहुत सारी वीडियो में, वहां पर लोग साइकिल से ट्रेवल करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, पेट्रोल के रेट्स इतने ज्यादा हाई हैं, तो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है हर चीज। इंडिया में भी ऐसा होने वाला है। तो यो बाइक जब 2012-11 में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे एवरीवन इज टर्निंग अप देयर स्कूटीज। उस टाइम एक्टिवा टॉप पे थी, पेट्रोल वाली एक्टिवा, या फिर दैट जो छोटी छोटी स्कूटीज आई थी बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए यो बाइक मार्केट से बहुत जल्दी चला गया। बट अब दोबारा सेम चीज आ रही है बिकॉज आपको पता है कि पेट्रोल 120 क्रॉस कर चुका है, ओके, और सबके लिए पेट्रोल व्हीकल अफोर्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई नाउ द सेम थिंग केम इनटू द गेम, ठीक है। ऐसे ही साइकिल्स भी दोबारा आ जाएंगी। यस शशांक, इफ आई गिव दिस आंसर, तो ऑब्वियसली बात है, मैं एक बहुत छोटा सा स्टोरी देता हूँ इसके पीछे। अभी कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है घर में, तो सारे बच्चे सेम नहीं होते, ठीक है। तो थिंक लाइक ओला इलेक्ट्रिक अभी लॉन्च हुआ है, तो वो भी अभी बच्चे के स्टेज में है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और कंपनी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट 100% सिक्योर कभी नहीं होता। आपके लैपटॉप पहले दिन भी खराब हो सकता है, आपका लैपटॉप 4 साल में भी नहीं खराब होगा, ओके। आपका मोबाइल भी 1 दिन में खराब हो सकता है या 4 दिन में भी खराब होगा। तो ऐसी ओला है, हर एक ओला में आग नहीं लग रही, ठीक है। एवरी ओला इलेक्ट्रिक इज नॉट गेटिंग फायर्ड, ठीक है, किसी किसी में हुआ है। ये सेम चीज टेस्ला में भी हुई थी, टेस्ला की भी बहुत सारी कार्स में फायर हुआ था। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। वो लोग भी डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एरर हो, क्या पता यूजर ने उसको गलत वे में यूज कर लिया, ओके। तो ये भी एक पॉइंट है ना कि आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि डिफरेंट एंगल भी, आपको पता है इंडियन यूजर्स कैसे हैं, ओके। तो जितने ज्यादा खुरापाती यूजर होता है लाइक मी, तो पहले दिन जब फोन आएगा तो मैं फोन को फोन की तरह तो यूज ही नहीं करूंगा, मैं उसका सारे फीचर्स खोल लूंगा बैठ के, और पता लगा वो फोन खराब हो गया, फिर विल सेंड टू कंपनी। कंपनी बोलती है सर आपने तो उसका बूट सेक्शन हैंडल कर लिया या बूट सेक्शन ओपन कर लिया, तो अभी वारंटी से बाहर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से थिंग्स आर वर्किंग। बट हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Okay, so Anshuman, I think you have raised a very great question. Here is yes, in Indian ecosystem of startups, hardly you will find 0.1% of the startups are working into hardware and IoT domain, and those who are working are actually earning a lot. But there is one major problem barrier between startup ecosystem in India and the Silicon Valley. So if you just check it out, कि यूएस के अंदर 98% स्टार्टअप्स आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ठीक है। इंडिया में 98% स्टार्टअप्स आर ड्रिवन बाय सर्विसेज। आई एम नॉट सेइंग टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ हार्डवेयर, ओके। तो इंडिया में हार्डवेयर का वेव अभी नहीं आया है, ओके। सॉफ्टवेयर का वेव ऑलरेडी 2-3 बार आगे जा चुका है। तो जो आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो आज की डेट में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आज की डेट में सक्सेसफुल होगा, बट मे बी आज से 2-3 साल बाद आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। बट आपको थोड़ा सा हर्डल और हसल लगेगा, क्योंकि लोगों में एडॉप्शन आने में बहुत टाइम लगता है, ओके। हम लोग होम ऑटोमेशन पिछले 4 साल से देख रहे हैं, अमेजोन पे हजार रुपए में आपको प्रोडक्ट मिलता है, बट क्या किसी ने आज तक होम ऑटोमेशन अपने घर में इंस्टॉल किया है? एनीवन? हम सब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हमारे घर में होम ऑटोमेशन नहीं है। मैं 20 रुपए का स्विच लगा लूंगा, बट मैं अभी भी होम ऑटोमेशन नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे अभी उसकी रियली में इतनी डिमांड नहीं आई है, ठीक है। बट वही फ्यूचर में आप जब सोसाइटी जब ग्रो करेगी, सारे लोग अपना घर रिन्यूएट करवाएंगे, वहां पर वो इतने आलसी और लेजी हो जाएंगे कि अपने बेड से भी नहीं उठेंगे, ठीक है। तो वो होम ऑटोमेशन को अडॉप्ट करेंगे, एंड दैट टाइम यू विल सी, ठीक है। Yes. So any other questions?
सी आई रियली वांट टू इंटरेक्ट बिकॉज मुझे देखना है कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, सो दैट आई कैन आंसर दैट एज वेल। और आपकी गुडीज भी टैग बनाने उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा। I will tell Ashutosh to send good goodies this time. One second, let me just check the question. Okay. So for CSE students, should we go for hardware or should we stuck only to coding for this domain? So see yaar, the point is, आज की डेट में कोई भी डिवाइस आपके सामने वर्क कर रहा है, वहां कोडिंग लगी है, ठीक है। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है आपके आसपास जहां कोडिंग ना हो। अभी डिपेंड करता है कि आप कोडिंग कहाँ करना चाहते हो। आप कोडिंग कंप्यूटर में करना चाहते हो पाइथन के ऊपर, या फिर वो सेम कोडिंग आप एक हार्डवेयर में करना चाहते हो और वहां पर कुछ चीज एक्टिवली देखना चाहते हो। मतलब हाउ व्हाई आई एम इनटू दिस डोमेन इज, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पाइथन में कोड लिखता हूँ मेरे सामने एक एलईडी ब्लिंक करती है, ठीक है। मुझे वो एकदम पसंद नहीं है कि मैंने पाइथन कोड लिखा और कंप्यूटर पे ब्लैक कलर की स्क्रीन पे एक आंसर दिखा दिया, नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई लव इलेक्ट्रॉनिक्स अ लॉट। मैं भी एक बहुत बड़ा कोडर हूँ, ओके। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो या आप कहाँ वर्क करना चाहते हो, ओके। तो रास्पबेरी पाई लेके भी पाइथन, जावा के कोड, सी प्लस के कोड लिखे जा सकते हैं। एम्बेडेड सी के कोडिंग भी जो आपको सी लैंग्वेज आती है वो आप आर्डिनो वगैरह पे लिख सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल। या सो सूर्य, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। हमें लगता है कि भाई मैंने अगर 20 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरे को जॉब मिलनी चाहिए जो अच्छी हो, मतलब मिनिमम 10-12 लाख का पैकेज तो मुझे लगना चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग इफ यू आर रियली अ टेक्निकल पर्सन, ठीक है, और आप अपनी डोमेन से एक्चुअली में कुछ सीखना चाहते हो तो यू हैव टू गिव टाइम, ओके। अभी या तो आप वो 4 साल अपने कॉलेज में दे दो बहुत अच्छे से, एज आई सेड कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टाइम लगाती है, ओके। यहाँ पर एक लैंग्वेज सीख के आप 4 दिन तो नहीं काम कर सकते। तो अगर आपको रियली यू नीड अ गुड पैकेज तो किट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई हैं जिन्होंने 25-25 लाख की भी ऑफर दिए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। बट वो बल्क नहीं हायर कर सकते, क्योंकि आप समझिए इफ आई एम यूजिंग दिस मोबाइल फोन, तो ये मोबाइल फोन एक जने ने बनाया होगा और इसकी 10 लाख कॉपी बिक गई, ठीक है। या फिर एक टीम ने बनाया होगा, 10 लोगों की टीम ने, और उसकी 10 लाख कॉपी बिक गई। तो ऐसा होता है हार्डवेयर इंडस्ट्री में कि अगर मैंने एक माउस डिजाइन किया तो वो माउस 10 लोगों ने बनाया है, ठीक है। मुझे 50 लोग नहीं चाहिए उस माउस के लिए, तो वो मुझे 50 जो 10 लोग हैं वो एक्सपर्ट चाहिए। तो अगर अभी आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो तो आई कैन गारंटी कि आप आराम से बहुत अच्छे पैकेज पे प्लेस हो जाओगे इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इन हार्डवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर आप जॉब की बात करते हैं तो क्या पता आपको शायद इनिशियली कम पैकेज मिले, बट एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने अपनी पहली जॉब 6,000 रुपए से ज्वाइन करी थी, ठीक है। उसके बाद तो आई जंप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। तो आप इमेजिन करिए 6,000 से सेकंड स्विच सीधा 24,000 का हुआ था, क्योंकि वो 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री विल गिव यू मोर नॉलेज जितना आपको एक बीटेक में नहीं मिलता, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, अभी अगर मैं किसी से पूछूं कि एक एलईडी बल्ब आप बना पाओगे क्या, ठीक है, तो एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इफ आई आस्क सिंपल वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन, मुझे एक 9 वॉट का एलईडी बल्ब चाहिए, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिजाइन द सर्किट? आई थिंक नो वन, राइट। बट अभी आप सोचिए कि वो एलईडी बल्ब मार्केट में बस 30 रुपए का आता है, 30-40 रुपीज का मिलता है, ओके। तो वो एक बल्ब का सर्किट तो एक बार ही बनाया गया ना, अभी उसको कंपनी हर साल लाखों के डिवाइसेस में बेच रही है। तो इसलिए यहाँ पर मास हायरिंग कभी नहीं होती है, ठीक है। सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन आई स्किप्ड। Suraj has asked, like, initial investment on IoT based startup is too high. Obviously, yaar, see, the point is hardware needs a lot of investment to set up a manufacturing plant, ठीक है। एक प्रोटोटाइप बनाना बहुत इजी है। प्रोटोटाइप आप उसको 2,000-3,000 में अपनी जेब से पॉकेट से खर्चा करके बना सकते हो, पॉकेट से एक्सपेंडिचर करके बना सकते हो। बट इफ यू टॉक अबाउट कि अभी आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है जिसमें मिनिमम 4 से 5 करोड़ लगेगा, ओके।
या फिर आप एप्पल बन जाओ। एप्पल की कंपनी क्या करती है, सारा R&D इन हाउस करती है और सारा मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करवाती है, आउटसोर्स कर देती है। या तो आप ऐसा कर लो, तो आपका लो इन्वेस्टमेंट भी काम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से। बट हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, मतलब फॉर बीइंग अ हार्डवेयर कंपनी इनटू IoT और एनी अदर वे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के आप 10 प्रोडक्ट भी नहीं बना पाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सारा गेम नंबर्स का है। अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट बनवाते हो तो आपका कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा, वही आप अगर 1000 प्रोडक्ट बनवाओगे तो कॉस्टिंग बहुत हाई रहेगा। ठीक है, okay, so any other questions? Sir, I think Ayush, Ranjan, and Devjyoti Datta have some questions in chat. Okay, what's the best way of coding language? I started from C++ 1 month ago. Yeah, see, Ayush, very frankly speaking, you learn C++, okay, it's very good. अगर आप उसको पूरा अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है, तब भी आपको जॉब लग सकता है। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को पाइथन सीखना है, यू कैन इजीली स्विच टू पाइथन। कुछ नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, ठीक है, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज चेंज है, लाइब्रेरीज बहुत सारी एडिशनल आ जाती हैं, तो हर एक लैंग्वेज का कोर सेम ही रहता है। आप वहां पर भी ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करोगे, यहाँ पर भी ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ठीक है, पॉइंटर्स वहां पर भी हैं, पॉइंटर्स यहाँ पर भी हैं। बट पाइथन के अंदर एडवांटेज बस यही है कि आपके पास लाइब्रेरीज का सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि C++ में नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री, आज भी हार्डवेयर कोडिंग C लैंग्वेज पे ही होती है। ओके, SpaceX C लैंग्वेज पे ही चल रहा है। ओके, टेस्ला कार C लैंग्वेज पे ही रन कर रही है। ओके, आपका कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, जो भी डिवाइस आपके आसपास दिख रहा है, सब C लैंग्वेज पे चल रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी पाइथन कोडिंग नहीं है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड डिफाइन कि अभी आपको क्या करना है, C++ करना है या पाइथन करना है या कोई और लैंग्वेज करनी है। ठीक है, स्कोप देखो, आप किसी भी लैंग्वेज को जब आप सिलेक्ट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी काम नहीं है, लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना एक बड़ा जॉब है। अगर इफ आई सिंपली आस्क कैन यू डिजाइन फ्लैपी बर्ड गेम ऑन C++, तो अभी आप वो सोचिए कि C++ से आप कुछ बना सकते हो या नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो चीज आपको सोचना है। ठीक है, क्या आप C++ में GUI क्रिएट कर सकते हो, क्या आप C++ में कोई ऐसा ML मॉडल बना सकते हो, तो वहां पर आपका एक्सपर्टीज आता है, वहां पर आपका लैंग्वेज का एक्चुअल यूज होता है। ठीक है, यार स्नेहल, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने कभी C++ के अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी। आज से 10 साल पहले पाइथन था भी नहीं, 10-12 साल पहले। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ी थी, वो थी C लैंग्वेज। हमारे स्कूल में भी वही था, हमारे कॉलेज में भी वही था। तो और मैंने उसी को ही पढ़ा है आज तक। ऐसा नहीं है कि मुझे पाइथन नहीं आता, हाँ ठीक है, बट आज भी हम C यूज कर रहे हैं। ओके, C एंड लिनक्स, आप ये समझ लो। फॉर डेवलपमेंट हमें यही चाहिए। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जॉब में कौन सी लैंग्वेज पूछी जाएगी, वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे अगर कौन सी लैंग्वेज आती है, आपने जो CV में लिखा है वो उसी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, यार जावा इज मोर ऑफ अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप कोर की बात करते हो तो कोर के लिए आपको C लैंग्वेज लगता है, बट जावा मेनली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, जैसे आपने मोबाइल का हार्डवेयर बना दिया, हार्डवेयर आपका चल गया, अब उसके ऊपर आपको एप्स इंस्टॉल करनी है, तो वो आपके लिए जावा बन जाएगा। ठीक है, तो जावा भी आप यूज कर सकते हो, बट जावा से आप मेनली IoT एप्लीकेशन बना पाओगे, ना कि आप IoT डिवाइस बना पाओगे। ओके, ये चीज है। देवज्योति दत्ता का एक क्वेश्चन है, हाउ विल IoT बेनिफिट्स इन द स्मार्ट सिटीज। सो यार देवज्योति, आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्मॉल एग्जांपल। बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि एडॉप्शन कितनी जल्दी होता है। तो एग्जांपल लेते हैं कि सिटी लाइक दिल्ली, यहाँ पर क्राइम रेट बहुत हाई है। ओके, कभी भी कोई भी गन शॉट हो जाता है, गन फायर हो जाता है, ओके, कोई भी किसी को मार देता है। तो
इफ यू थिंक ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी हमारे पास सीसीटीवी कैमराज हैं, पर सीसीटीवी कैमरा का व्यूइंग एंगल हर जगह का नहीं हो सकता। ओके, तो हमने क्या करा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने बहुत सारे साउंड सेंसर्स लगा दिए, साउंड सेंसर्स हर जगह पर, ठीक है। अब क्या होगा, मैं उन सेंसर्स का डेटा जो आ रहा है उसको एनालाइज कर रहा हूं। अब अगर कभी गन शॉट हुआ तो मुझे पता होगा कि कौन सेंसर से गन शॉट की आवाज आई है, ठीक है। तो मैं इजीली पुलिस को अलर्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे गन शॉट हुआ है, फाइन। तो इस तरह से स्मार्ट सिटीज के अंदर ये सब चीजें लाया जा सकता है, ठीक है। मान लो किसी जगह पे फाइट हो रही है, तो अभी क्या होगा, वहां पे शोर होगा, लोगों की आवाजें आएंगी, तो आई एनालाइज दोज वॉइसेस एंड सिंपली अलर्ट कि भाई यहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे सेंसर्स लगा के एक स्मार्ट सिटी को पूरा इनेबल कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Mohammad Anas Khan, what how you can start is you can just simply purchase Node MCU or ESP32 board. Okay. After that, just connect few sensors. Let's say humidity sensor or temperature sensor and all. Try to send the data over the cloud. There are various cloud like ThingSpeak or other clouds are there. I don't remember the actual name of that. And with the help of MQTT, CoAP protocols, okay, how you are transferring the data to the cloud. This is one part. If you have successfully complete this portion, means you understand how actually IoT works. Now, second thing is, this is the one way with the help of Wi-Fi. Second is the help of Bluetooth. You create a data from your sensor, transfer it to mobile phone via Bluetooth. From mobile phone app, transfer it to cloud. That is another aspect of IoT. जैसा आपका फिटबैंड करता है, ठीक है, फिटबैंड भी यही करता है। आप अपना डेटा फिटबैंड में ट्रैक करते हो, वहां पर मेमोरी में स्टोर करते हो। जब आप अपने मोबाइल से पेयर करते हो तो डेटा आपके फिटबैंड से सारा मोबाइल में चला जाता है और मोबाइल से डायरेक्टली आपके क्लाउड पे जाता है। अभी नेक्स्ट टाइम आप कहीं पर भी लॉग इन करेंगे तो आपको सेम डेटा दिख जाएगा, राइट। तो इस तरह से यू कैन स्टार्ट इनटू दिस। आर्डिनो इज ऑल्सो अदर ऑप्शन, बट आर्डिनो में आपको वाईफाई लगाना पड़ेगा, ओके। तो नोड एमसीयू और ESP32 में ऑलरेडी वाईफाई होता है। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। कुछ सेंसर्स लेके आओ, प्रोग्रामिंग आर्डिनो IDE पे कर लो, क्लाउड यूज करो, ओके, नोड-रेड वगैरह यूज करो, आप इजीली उसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली रेस्पबेरी पाई पे जंप मत करना। आई विल फ्रेंकली स्पीकिंग, रेस्पबेरी पाई पे जंप तब करना जब आपको अच्छे से ESP32 या नोड एमसीयू या आर्डिनो चलाना आ जाए, ओके। अगर सेम काम, अगर एलईडी ब्लिंकिंग की करनी है रेस्पबेरी पाई पे तो कोई यूज नहीं है। आई थिंक 4000 रुपए का रेस्पबेरी पाई लेके एलईडी ब्लिंक क्यों करोगे। Then first year we have to be familiar with Arduino, then we can see, yeah, I'm not saying you have to be familiar with Arduino, but my point is you should learn first Arduino, then switch to Raspberry Pi, because Raspberry Pi is a computational unit, high computational unit, okay, and Arduino is a microcontroller unit. So there's a difference between controller and processor units, okay. On processor unit you will install operating system, you will create application over there. In Arduino you will write complete code in C language. And with this, we have come towards the end of our session. Thank you very much, sir, for your valuable time and words. It surely would have inculcated a boost and positive energy among all the blooming professionals present among us. Now, I would like to hand over to Naman Sharma, who has an exciting announcement. Naman, over to you. Yeah, hi. Thank you, Madhura. First of all, I would be thanking Siddharth sir for such an informative session. सिद्धार्थ सर हमारे साथ पहले से ही हैं एंड लाइक इनका नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं है, बहुत अच्छा लाइक हमेशा इनका सेशन जाता है एंड ऑल। बट
एज पर साइकोलॉजी यू ऑल नो कि एक दिन में हम लोग सब कुछ सीख नहीं सकते हैं, एटलीस्ट 21 दिन लगता है हम लोग को किसी चीज को लाइक बिठाने के लिए एंड ऑल, राइट? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस, and Madhura, please let me know if it is visible or not. Okay. Sure, sir. Just a sec. Yeah. So is my screen visible? Hello. Yes, yes, it is. Yeah, yeah. Yes, Yeah, sir. so basically, TechBurn is bringing a training program, summer training program, which will be taken by obviously Siddharth sir, है ना? So आपको एक like around 1.5 hour या 1 hour के webinar में आपको इतना कुछ information already मिला है ना? But yes, अगर आपको सर को पूरा सिखाना हो तो उनको like कुछ sessions और लेने पड़ेंगे and तभी आप लोग like each and everything आप सीख पाओगे, ठीक है? So basically इस वेबिनार में, इस ट्रेनिंग में हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद डेटा एनालिटिक्स। जैसे आपको सर ने ऑलरेडी अभी बताया था कि कैसे कैसे डेटा एनालिटिक्स हम लोग को करना पड़ता है ना, जैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा एंड ऑल। बट इसको और डिटेल में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है ना, एंड एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स वगैरह सर आपको सिखाएंगे इसमें, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे हमारे इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो दूसरों से अलग है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव एंड लाइव ट्रेनिंग आपको रहेगा, ठीक है? जो भी आपका लाइक सेशंस वगैरह होंगे यहाँ पे समर ट्रेनिंग में, जो भी होंगे सारी चीज लाइव रहेगी, ठीक है? आप अपने डाउट्स वगैरह एंड ऑल सब कुछ आप सेशन में ही पूछ सकते हो। नेक्स्ट थिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको रहेगा 24/7, है ना? डिस्कशन फोरम जो भी है, हमारे मैनेजमेंट से आपके साथ लोग कनेक्टेड रहते हैं एंड लाइक आप उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो एंड ऑल, है ना? कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो लाइव के बाद आपको कुछ हो तो हमेशा लाइक वी आर अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स एंड ऑल। नेक्स्ट थिंग, बैजेस एंड सर्टिफिकेशन। बैजेस एंड सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आप कुछ चीज पढ़ तो रहे हो बट उस पढ़ाई की वैल्यू भी होनी चाहिए, राइट? सो हम लोग लाइक बैजेस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट जॉनरास को, ताकि आप लोग को लाइक समझ में आए एंड लाइक आप इम्प्रूव करो, आपके बीच में कंपटीशन बढ़े, ठीक है? सो किसी को बैजेस मिलते हैं, गोल्ड बैज हो गया, सिल्वर बैज हो गया, है ना, प्लैटिनम बैज हो गया। तो ये जो बैज होता है ये क्यों मिलता है? ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना पानी में हो उस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग इज 5+ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ये भी आपको सिद्धार्थ सर बताएंगे कि कैसे आपको लाइक प्रोजेक्ट वगैरह कैसे करना है एंड ऑल, है ना? कैसे क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रीज में होते हैं एंड कैसे आप आईओटी को लेके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? सो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैंने ऑलरेडी आपको चैट बॉक्स में पिंग कर दिया है, यू कैन जस्ट गो एंड विजिट देयर, है ना? आप लोग रजिस्टर कर सकते हो एंड यस, सो आपको लाइक इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो एंड yeah, handing over to Madhuja now. Thank you so much, Naman sir. I hope everyone took a note of that. And the links to our social media handles are provided in the chat. You may go and feel free to connect with us, provided the social media links to grow more. I'm sure everyone is thrilled to know about exciting programs that we're coming up with. I would like to express my appreciation to all the panelists for their presence. I would also like to extend my gratitude to TechBurn, who provided us with the opportunity to conduct this webinar. It really was an honor to host so many vibrant faces who have joined us today to accompany each other on this journey of shaping a future that works for all of us by putting people first and empowering them. Hope this session turned out to be fruitful and an engaging experience for all of you. Okay, everyone, we're just giving you 2 minutes to go through the social media handles and to fill the attendance form. And Siddharth Bhatta sir has also shared his LinkedIn ID. You can connect with him there. And we'll be announcing the giveaway results shortly, so please stay tuned for that. Thank you.